નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નેશન પ્લસ ન્યૂઝ. નેશન પ્લસ ન્યૂઝના આ વિશેષ કાર્યક્રમમાં હું હેતલ ભગત આપ સૌનું હાર્દિક અભિવાદન કરું છું. દર્શક મિત્રો, આજકાલ ઘણા લોકો કસરતને લઈને સભાન બનતા જોવા મળે છે. ઘણા લોકો ધીમે ધીમે કસરત હોય કે પછી ડાયટ હોય, આ દરેકની ઉપર ધ્યાન આપવા લાગ્યા છે. ત્યારે કેટલાક એવા પણ લોકો છે કે કેટલાકના મનમાં પ્રશ્ન મૂંઝવતા હોય છે કે આ કસરત વળી છે શું અને આ કસરતથી શું ફાયદા થાય છે. આમ ઘણા પ્રશ્નો મૂંઝવતા હોય છે અને ઘણા પબ્લિક એવા પણ છે, ઘણા લોકો એવા પણ છે કે કસરત કરવી હોય છે પરંતુ તેમની પાસે સમય નથી હોતો. અને ઘણા એવા છે કે કસરત કરવી છે પરંતુ તેની શરૂઆત કેવી રીતે કરવી, કસરતના ફાયદા શું છે, શું ગેરલાભ છે, શું ફાયદા છે, આ દરેક વિષયની આપણે ચર્ચા વિચારણા કરીશું, જેથી કરીને જે લોકો કસરત નથી કરતા તેઓ દ્વારા આ કસરત એક માધ્યમ બની રહે, તેમની ફિટનેસ જળવાઈ રહે. તો એથી કરીને આપણી સાથે એક એવા જ મહેમાન ઉપસ્થિત છે, ઉર્વી પરવાની, કે જેઓ ફિટનેસ ટ્રેનર તરીકે આજે ઓળખાય છે. અને તેઓ માત્ર ફિટનેસ ટ્રેનર જ નહીં પરંતુ ઝુમ્બા ડાન્સના ઇન્સ્ટ્રક્ટર પણ છે અને સાથે જ હેપી સ્ટ્રીટ અને ફન સ્ટ્રીટમાં પણ એટલી જ ભૂમિકા ભજવે છે અને દરેક લોકોને ફિટનેસ રહેવા માટેનો એક સારો મેસેજ પહોંચાડે છે અને દરેક લોકો ફિટનેસ તેમની જાળવી રાખે છે. તો જી ઉર્વી પરવાની, આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે અમારા નેશન પ્લસ ન્યૂઝના સ્ટુડિયોમાં. જી ઉર્વી પરવાની, સૌપ્રથમ તો હું આપની પાસેથી જાણવા માંગીશ કે આ જે ફિટનેસ છે, સૌપ્રથમ તો તમે શરૂઆત ક્યાંથી કરી, મતલબ તમે અભ્યાસ શું કર્યો છે એના વિશે જણાવશો. सो इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था 12 साल की एज में विद डांस, क्योंकि डांस मेरा पैशन था एंड कुछ फाइनेंशियल क्रंचेस की वजह से मैंने डांस सिखाना स्टार्ट किया सीखने की जगह, बिकॉज हमारे लिए वो छोटा सा एक फीस पे करना भी उस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट था, बट एक वो पैशन होता है तो फिर मैंने कोशिश की और मैंने इस तरीके से स्टार्ट किया. ઓકે, મતલબ આપ 12 સાલ કે થે, 12 વર્ષના હતા ત્યારથી તમે આ શરૂઆત કરી દીધી. તો અને સાથે જ આજે તમે 12 વર્ષથી શરૂઆત કરી, તો આમ પ્રોફેશનલ બેઝ પર જે કહીએ આપણે કે આ જ કારકિર્દીમાં તમે ઝંપલાવ્યું છે, તો એ ક્યારથી કર્યું છે? તો પછી જ્યારે હું 16 વર્ષની હતી ત્યારે મને કોઈએ કીધું કે ઝુમ્બા કરીને એક ફોર્મેટ છે જે યુએસમાં બહુ સારું ચાલે છે. So when I got to know about Zumba, मैंने YouTube किया Zumba क्या है, एंड देन धीरे धीरे मैंने YouTube से सीखा और सिखाना भी शुरू किया. फिर मैंने Zumba का लाइसेंस लिया, सर्टिफिकेशन लिया और मैंने मेरा फर्स्ट सेंटर ओपन किया जब मैं 18 साल की थी. सो इस तरीके से मेरी जर्नी फिटनेस की तरफ शिफ्ट हुई, क्योंकि मुझे डांस से बहुत ज्यादा प्यार था और Zumba एक ऐसा फॉर्मेट है जो डांस के साथ वर्कआउट होता है. આપ તમે જ્યારે ઝુમ્બાની વાત કરો છો તો ઘણા એવા લોકો છે કે ઝુમ્બા વિશે બહુ જ જાણતા હોય છે અને મોટા ભાગના એવી પબ્લિક છે કે ઝુમ્બા વિશે કશું જ જાણતા નથી હોતા. તો એવા લોકોને, એવા દર્શક મિત્રોને જણાવો કે ઝુમ્બા છે શું અને તેની શરૂઆત વર્લ્ડ વાઇઝ ક્યારથી થઈ? सो जुम्बा स्टार्ट हुआ यूएस में 2001 में एंड इंडिया में आया अराउंड 2010 या 11 के आसपास इंडिया में आया और काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया 2015 या 16 के आसपास. जुम्बा एक ऐसा एक्सरसाइज फॉर्मेट है जिसके अंदर डांस भी यूज होता है, वर्कआउट्स भी यूज होते हैं और उसमें बेसिकली आपको आइडिया ही नहीं आता कि आपने कितना सारा वर्कआउट कर लिया है डांस के साथ, कितनी सारी कैलोरीज बर्न कर लिया है. सो जैसे हम लोगों को बोलते हैं ना कि मेडिटेशन करो, बट मेडिटेशन में क्या होता है कि जिन लोगों का थॉट प्रोसेस बहुत ही ज्यादा रहता है तो मेडिटेशन करते टाइम और ज्यादा सोचने लगते हैं. और जुम्बा एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपका फिटनेस, फिजिकल फिटनेस तो इम्प्रूव करती है बट साथ में मेंटल फिटनेस भी इम्प्रूव करती है, क्योंकि आपको इंस्ट्रक्टर को इतना इंस्टेंट कैच करना है ना कि उस टाइम पे आप ये नहीं सोचते कि मैं घर पे गैस स्टॉप ऑन करके आई हूँ या मुझे ऑफिस में जाके ये काम करना है. आप उस टाइम पे उस करंट मोमेंट में ही रहते हो. तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी तो हो रही है, प्लस आप डांस कर रहे हो, मतलब आप खुश रह रहे हो एंड ऑल्सो वो आपकी एक मेंटल एक्सरसाइज भी हो रही है. यस. તો આપને જબ અભી બોલા કે મતલબ આપને જબ અભી તમે જ્યારે કીધું ત્યારે ખબર પડી કે ઝુમ્બા આવી રીતે મેન્ટલ જે સ્ટ્રેસ હોય છે જે લોકો, એ લોકો સ્ટ્રેસમાંથી બહાર આવી શકે છે. તો આ બધી વાત તો જ્યારે તમે કહો છો ત્યારે ખબર પડે છે, પરંતુ દરેક ક્લાયન્ટ કે કોઈ પણ પબ્લિક હોય સામાન્ય, એ લોકોને અવેર તમે કેવી રીતે કર્યા છે? ओके, सो इसमें कहीं ज्यादा हेल्प किया वीएमसी ने. सो उन्होंने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया फन स्ट्रीट करके एंड बड़ौदा में 100, 200, 500 लोगों को इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है. हाँ, वही. पर
80,000 90,000 लोगों को साथ में इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है। और जब वीएमसी ने ये चीज स्टार्ट की इनिशियली, तो लोगों को जुम्बा के बारे में पता चला, और वहां पर स्टेज पे इतने सारे लोगों को जब हम लोगों ने साथ में करवाया तो अवेयरनेस और भी ज्यादा हो गई, क्योंकि लोगों को मजा आया वो करने में। धीरे धीरे लोगों ने क्लासेस ज्वाइन करना स्टार्ट किए, और अब तो आप देखोगे बड़ौदा में बहुत सारे जुम्बा क्लासेस चल रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, और सारे के सारे क्लासेस सबके फुल ही जा रहे हैं। ઓકે, તો આપ જો તમે જ્યારે ઝુંબાની વાત કરો છો કે આવી રીતે મતલબ તમે હેપી સ્ટ્રીટ અને ફન સ્ટ્રીટમાં પણ આવી રીતે ભાગ ભજવ્યો છે, તો એ કઈ કઈ જગ્યા છે આપણે જો ભારતના બેઝની જો વાત કરીએ તો? सो मैंने बड़ौदा में तो सेशंस लिए हैं, बट मैंने एमपी में, महाराष्ट्र में दुलिया करके एक छोटी सी सिटी है, वहाँ पर मैंने सेशन लिया है। मैंने मरीन ड्राइव पे सेशन करवाया है। एमपी में एक कटनी करके एक छोटी सी जगह है, वहाँ पर करवाया है। गोवा में मैंने सेशंस लिए हैं। तो मैंने मल्टीपल जगहों पे ये सेशंस लिए हुए हैं, एंड काफ़ी सारी जगहों पे अवेयरनेस क्रिएट किया। इनफैक्ट 2017 में मिसेस इंडिया करके एक पेजेंट था गोवा में, तो मैंने उसमें भी सिखाया था। एंड इनफैक्ट मैंने खुद मिस वेलनेस इंडिया में पार्टिसिपेट किया था 2020 में, जिसमें मैं विनर थी, और वो इवेंट हुआ था दिल्ली में। હેપી સ્ટ્રીટ અને ફન સ્ટ્રીટ એક એવી વસ્તુ છે કે વન ટાઈપ મતલબ એક દિવસે કે એક સમય માટે તમે એકઠા કરીને પબ્લિકને અવેર કરી શકો છો, પરંતુ ત્યાર પછી શું? મતલબ એનાથી એક દિવસમાં થોડી ફાયદો થઈ જાય છે, એના માટે કન્ટિન્યુશન જરૂરી છે, તો એના માટે પછી તમે શું કર્યું છે? सो मैं मेरे 3 सेंटर्स चला रही हूँ बड़ौदा के अंदर, एंड हम लोग दिन के 35 से 36 बैचेस कर रहे हैं तीनों लोकेशन पे मिलाकर। तो लोग, काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एंड जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने स्टार्ट किया था 2 स्टूडेंट्स के साथ, बट आज मेरी फैमिली 700 स्टूडेंट्स की है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। सो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी चलाते हैं, और लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। लोग अपने टाइम के हिसाब से बैचेस ज्वाइन करते हैं, वर्कआउट करते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। અને આ જે ઝુંબા છે જો એની વાત કરીએ આપણે, તો એનાથી ફાયદા શું થાય છે? जैसे मैंने बताया, फिजिकल फिटनेस तो होता है, जुम्बा एक तरीके की कार्डियो एक्सरसाइज है। सो आपके हार्ट के लिए अच्छा है, अगर आपको फैट बर्न करना है उसके लिए अच्छा है। कोविड के टाइम पे हमने ये सीखा कि लंग्स का हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है, वो इम्प्रूव होता है जुम्बा से। फिजिकली आप फिट होते हैं, आप बेटर फील करते हैं, आप स्वेट करते हैं, कैलोरीज बर्न करते हैं, टॉक्सिन बाहर निकालते हैं, क्योंकि हम इतना ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं, तो अगर पसीना भी हो रहा है तो आप टॉक्सिन बाहर निकाल रहे हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, वो एक तरीके की बेस्ट मेंटल एक्सरसाइज है। सो ये जो वर्ड एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है ना, वो लोगों की लाइफ से कम हो जाता है अगर आपने आराम से 10 या 15 दिन अगर आपने सेशंस अटेंड किए हैं, तो आप देखेंगे कि 40-50% रिकवरी आना स्टार्ट होती है, और 2 या 3 महीने में तो लोग 100% रिकवर हो जाते हैं। ઓકે, તો એમ કહી શકાય કે આફ્ટર કોવિડ આ ઝુંબાનો ક્રેઝ વધારે પડતો વધી ગયો છે અને લોકો એનું ફોલો પણ કરે છે। તો આ સાથે તમે ફૂડની પણ વાત કરી કે લોકો જંક ફૂડ કે વોટેવર અલગ જે ના ખાવાની વસ્તુ પણ ખાઈ રહ્યા હોય છે, તો આની અંદર ખાસ કરીને જો તમે ઝુંબા ડાન્સમાં જોડાયેલા હોવ તો કયા પ્રકારનો આહાર ગ્રહણ કરવો જોઈએ? तो देखिए, खाना, हेल्दी फूड खाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बट वो मैं खुद बोलूँ वो भी बहुत गलत हो जाएगा, बिकॉज मैं खुद जंक फूड लवर हूँ। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये मानती हूँ कि आप जंक फूड खा रहे हैं कि आप हेल्दी फूड खा रहे हैं, पोर्शन कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी चीज़ हमारे इंडिया का के कल्चर में ऐसा बोला जाता है, अति का अंत होता है। कोई भी चीज आपको ओवर कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, कम ही लेनी चाहिए। एंड जब हम लोग बात करते हैं डाइट के लिए, तो आपको डाइट इस तरीके का लेना चाहिए कि उसके अंदर सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूडेड हो, वेदर इट इज प्रोटीन, कि आप कार्ब्स ले रहे हैं, तो ये फाइबर्स ले रहे हैं, ये सबका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और जितना हो सके आप डेफिनेटली घर का बना हुआ खाना खाइए, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, हमारे कल्चर के हिसाब से हमारे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की अगर हम बात करें, तो जिस तरीके से हम पहले लेते आते थे, दाल चावल, सब्जी रोटी, उन सब के अंदर सब कुछ इंक्लूडेड ही रहता है। तो जितना हो सके अपने इंडिया के कल्चर के साथ स्टिक रहिए, और जो हमारे एंसेस्टर्स खाते आए, जो हमारे बड़े हमेशा खाते आए हैं, उसको आप कंटिन्यू रखिए, जारी रखिए। मोमोज, मैगी खाने का आई नो सबको इच्छा होता है, बट उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके जितना हो सके आप घर का खाना खाइए, अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो। मतलब हेल्दी रहना है आपको भी,
तो आप खुद भी मतलब हेल्दी फूड ही खाना पड़ेगा जो भारत का है, जो आपने बोला कि सब्जी रोटी वही सब खाना है घर का, उसी से आप हेल्दी रह सकते हो। तो इसके साथ ही मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो जुम्बा डांस जो आप कर रहे हो तो उसमें उसको लेकर साइंस क्या बोलता है? वैज्ञानिक रीज़न क्या है? फ़ायदा क्या है उसका? जैसे देखिए हैंड आई कोऑर्डिनेशन लोगों का इससे बहुत इंप्रूव होता है। इनफैक्ट बच्चों के लिए भी ऐसा बोला जाता है कि बच्चों में हैंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होना जरूरी है, मतलब इंस्टेंट कैच करने का पावर। तो अगर आप साइंटिफिकली देखना चाहें तो ये आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव करता है, मतलब आपका इंस्टेंट कैच करने का पावर बढ़ जाता है। करंट मोमेंट में रहने की जो बात होती है, प्रेजेंट में रहने की जो बात होती है, वो काफी इंप्रूव होता है। ओके। और जो हम बात करें जुम्बा की, काफी टाइम से मतलब हमारी हिंदी गुजराती हो रही है तो इसी के दौरान मैं पूछ लेती हूँ कि जो जुम्बा है उसमें कई लोगों ऐसा है कि इसमें आ नहीं सकते हैं क्लासेस के लिए, ट्रेनिंग के लिए, कुछ भी मतलब आपके क्लास ज्वाइन नहीं कर सके, और उन लोगों को करना है तो वो लोग क्या कर रहे हैं शुरुआत के दिनों में? पहले तो क्लासेस पे नहीं आ सकते तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते तो मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे भी वीडियोस डले हुए हैं, वो फॉलो कर सकते हैं। और अगर उसके लिए भी वक्त नहीं है तो आप सिर्फ अपने लिए 5 मिनट निकालिए, रूम बंद कीजिए, म्यूजिक चलाइए और दिल खोल के नाचिए, फिर आप भले गणपति डांस ही क्यों ना कर रहे हैं। अच्छा। तो खुद के लिए 5 मिनट आप स्पेयर कीजिए, बिकॉज एक चीज याद रखिएगा कि कपड़ों पे, ज्वेलरी पे, खाने, रेस्टोरेंट हम कौन सा जाना है, हम उसके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना सर्च करते हैं, इतना टाइम निकालते हैं, पर हम लोग हमारी अगर बॉडी के लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो आप सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, ये एक अकेली ऐसी चीज है जो आपके साथ जिंदगी भर रहेगी, एंड तक रहने वाली है। तो इसके लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए। અને આની અંદર કોઈ પર્ટિક્યુલર કોઈક સ્ટેપ કરવાનો હોય છે એવું કંઈ હોય છે ખરું? नहीं नहीं, सो बेसिकली जुम्बा की जो ट्रेनिंग है वो आपके ट्रेनर के ऊपर डिपेंड करती है। विदाउट एन इंस्ट्रक्टर जुम्बा पॉसिबल नहीं है। एक ट्रेनर होता है जो आपको थ्रू आउट वार्म अप से लेके स्ट्रेचिंग तक एक सेशन करवाता है, एंड उसमें बार बार वो रिदम चेंज करता है, डांस स्टेप्स चेंज करता है, तो आपको वो एनर्जी और वो मजा ही कुछ अलग रहता है। ओके। तो ये जो जुम्बा की हम बात कर रहे हैं उसमें हम अगर बोले तो काफ़ी सारी महिलाएं इसके अंदर जुड़ी रहती है, मोस्टली मतलब महिला ही होती है। तो उनको लेकर अगर जो हम बात करें तो जो पीरियड्स के दौरान वो महिलाएं कर सकती है जुम्बा डांस? डिपेंड करता है उनकी हेल्थ पे, डिपेंड करता है उनके फ्लो के ऊपर। इफ दे फील कि वो लोग कर सकते हैं तो ही वो आ सकते हैं। अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है, अगर आपका फ्लो कम है, अगर आपको बॉडी में पेन ज्यादा है ड्यूरिंग पीरियड साइकिल, तो आपको वर्कआउट करना चाहिए, बिकॉज उससे हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो मूड स्विंग होते हैं पीरियड्स के दौरान वो कम हो जाते हैं। बट अगर आपका फ्लो हैवी है और अगर आपकी बॉडी आपको बोल रही है कि आपको रेस्ट की जरूरत है, तो देन आपको रेस्ट लेना चाहिए। और अगर आप रेगुलर वर्कआउट करते ही हैं तो आप पीरियड्स के टाइम पे ब्रेक ले सकते हैं। बट इफ यू आर ओके। समवन जिसने जस्ट स्टार्ट किया है और पीरियड साइकिल स्टार्ट हुआ है, तो देन आपको वर्कआउट करना चाहिए। और उस दौरान कुछ स्पेशल कुछ फूड लेने की जरूरत है, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, स्पेशल फूड लेने की ऐसी कोई स्पेसिफिक जरूरत नहीं होती है पीरियड साइकिल के टाइम। पर अगर आप चाहे ना तो एक स्पेशल चीज आप कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, 4 पानी की बोतल ले सकते हैं, 1-1 लीटर की। एक में आप, उसमें आप इंडियन किचन के मसाले ऐड कर दीजिए। मसाले इन द सेंस कि आपने एक में तुलसी डाल दिया, एक में आपने सिनेमन डाल दिया, दालचीनी, एक में आपने अजवाइन डाल दिया, एक में आपने सौंफ एंड जीरा डाल दिया। इस तरीके की आप 4 बॉटल बना के रख सकते हैं। तो नॉर्मल पानी की जगह आप उस पानी को सिप कर सकते हैं। क्वांटिटी आप मसालों की कंट्रोल कर सकते हैं ताकि बहुत ज्यादा गर्म ना पड़ जाए। तो इस तरीके से आप ये जो 4 पानी की बॉटल है, मतलब हम जो पूरे दिन में पानी पीते हैं, अगर आप उसमें ये मसाले ऐड कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई भी होगी, जितना कचरा होगा वो भी निकल जाएगा। और पीरियड साइकिल के टाइम पे जो दर्द होता है वो आपको कहीं हद तक कम हो जाएगा। प्लस अगर आपको वेट लॉस करना है तो ये बेस्ट तरीका है वेट लॉस करने का। તો આપણે અત્યાર લગીને વાત કરી ઝુમ્બા વિશે, પરંતુ આના સિવાય પણ તમે એરિયલ યોગા કરીને પણ કંઈક ક્લાસ કર્યા છે, તો એ છે શું એના વિશે જણાવશો? सो जुम्बा के अलावा मैं पिलाटेस, एरियल योगा, योगा के सेशन, बॉडी वेट ट्रेनिंग, फंक्शनल ट्रेनिंग, काफी सारी चीजें मैं लेती हूँ।
एंड हमारा जो सेंटर है इट्स अ फिटनेस सेंटर, वो सिर्फ जुम्बा का सेंटर नहीं है। अब मैं एरियल योगा के बारे में बताऊं तो एरियल योगा के मैंने 2 कोर्सेज किए हैं ऋषिकेश से। और एरियल योगा में क्या होता है कि एक हैमॉक होता है, दुपट्टे जैसा होता है, बट काफी स्ट्रॉन्ग दुपट्टा और काफी बड़ा रहता है। तो आप जो योगा मेट पे करते हैं, फ्लोर पे करते हैं, वही योगा को हम उस दुपट्टे के ऊपर जाकर करते हैं, जिसके लिए आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए, जिसके लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। अगर आपका टारगेट है ना आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है बट आपको डंबल्स नहीं उठाने, तो एरियल योगा वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर्मेट है जिसमें आप अपना खुद का बॉडी वेट उठा रहे हैं, जिसमें आप पुलअप्स कर रहे हैं, खुद का बॉडी वेट उठा रहे हैं। सो एक वो डिफरेंट फॉर्मेट है योगा का जो इंटेंस है बट बहुत ही ज्यादा मजेदार है। અચ્છા અત્યારે આપણે વાત કરી એરિયલ યોગા વિશે પણ, પરંતુ હવે હું જે અમારા દર્શક મિત્રોને ખાસ કરીને જાણવું ગમશે કે ફિટનેસની કોઈક સમ ટિપ્સ હોય જે સારી, મતલબ ટૂંકમાં એ લોકો ઘરેથી પણ કરી શકે એવી કોઈ ટિપ્સ હોય તો જણાવશો। डेफिनेटली पहले आपको ये समझने की जरूरत है आप किस तरीके के इंसान है। अगर आपको डांस करना पसंद है तो आपको जुम्बा करना चाहिए। अगर आपको स्ट्रेचिंग करना पसंद है तो आपको योगा करना चाहिए। अगर आप ऐसे हैं जिसको जिम जाने में मजा आता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने में मजा आता है, तो आपको वो करना चाहिए। पहले तो आप ये समझिए कि आप किस तरीके का पर्सन है। अगर आपको भागना पसंद है तो डेफिनेटली आप रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वंस यू विल अंडरस्टैंड कि आपको क्या पसंद है, उसके हिसाब से YouTube पे, Instagram पे अब तो अनलिमिटेड वीडियोस अवेलेबल हैं। आप वो फॉर्मेट चूज कीजिए जिसको आप एंजॉय करते हैं, बिकॉज जो चीज़ आप एंजॉय करेंगे ना उसके लिए आपको 1 जनवरी या हर महीने की 1 तारीख या मंडे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप उसको रोज कंटिन्यूएशन में ही फॉलो करेंगे। ઓકે। અને અત્યારે હાલ લગ્નની સિઝન ચાલી રહી છે, તો ખાસ કરીને જે પણ મતલબ બ્રાઇડ હોય કે બ્રાઇડગ્રૂમ હોય એ લોકો ખાસ કરીને એવું વિચારતા હોય છે કે પોતાના લગ્ન પ્રસંગમાં તેઓ ફિટનેસ જાળવી રાખે અને સ્લિમ ટ્રીમ થઈ જાય એ રીતના એ લોકો પ્લાનિંગ કરતા હોય છે, તો ઝુમ્બામાં પણ જોડાતા હોય છે। તો આના વિશે તમે શું કહેશો કે શું એમાં જોડાવાથી એ લોકો ફિટનેસ જાળવી રાખે છે? डेफिनेटली, बट आपकी शादी के एटलीस्ट 2 या 3 महीने पहले आपको फिटनेस स्टार्ट कर देना चाहिए। फिटनेस तो लाइफ टाइम ही कंटिन्यू रखना चाहिए, बट अगर आप प्लान कर रहे हैं तो एटलीस्ट 3 महीने पहले प्लान कीजिए। क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्लास पर आते हैं अपनी शादी के 1 महीने पहले और ऐसा बोलते हैं कि 1 महीने में मुझे 15 या 25 किलो कम करना है, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। तो एटलीस्ट आपको उसके लिए 3 महीना चाहिए। एंड पता है बेस्ट पार्ट क्या है, जब आप वर्कआउट करते हैं, जब आप स्वेट करते हैं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी स्किन, आपके बाल भी बेटर हो रहे हैं, वो अलग एक नेचुरल ग्लो आना स्टार्ट होता है। तो आप पतले तो होते ही है बट साथ में आप बहुत ज्यादा ग्लोइंग हो जाते हैं। अच्छा। एंड उसके साथ डेफिनेटली आप डाइट भी कर सकते हैं वेट लॉस के लिए। कैलोरी डेफिसिट डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कैलोरीज को कंट्रोल करना, आपकी बॉडी को जितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है उससे कम लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उर्वी, एज ए फिटनेस ट्रेनर आप हमारे दर्शक मित्रों को क्या कहना चाहोगे? कोई अच्छा सा मैसेज। एक बहुत सिंपल लाइन है, LIVE योर लाइफ, मतलब लिव योर लाइफ, नॉट LEAVE योर लाइफ। मतलब अपनी जिंदगी सिर्फ चलाने के लिए, काटने के लिए मत काटो। अगर एक बहुत ब्यूटीफुल सी जिंदगी निकालनी है तो खुद के लिए थोड़ा 1 घंटे का, 2 घंटे का रोज वक्त निकालिए। फिर आप उसमें कोई भी एक्टिविटी कीजिए। आप भले गार्डन में चलने जाइए, पर खुद के लिए, सेल्फ के लिए एटलीस्ट 1 घंटा ऐसा निकालिए जहाँ से आप खुद को इम्प्रूव कर सके। तो ये बॉडी जो एंड तक आपके साथ रहने वाली है, उसके लिए थोड़ा वक्त निकालिए, ऑटोमेटिकली आप एक बहुत ब्यूटीफुल सी जिंदगी जिएंगे। ओके। तो उर्वी परवाणी, आप અહીં અમારા સ્ટુડિયો પર આવ્યા એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। આપે આપનો કિંમતી સમય કાઢીને આવ્યા એ બદલ ફરીથી આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। તો દર્શક મિત્રો, આવી જ રીતે ફિટનેસ જાળવવા માટે દરેક લોકો, ઉર્વીજીએ બહુ ખૂબ સરસ મેસેજ આપ્યો છે કે પોતાની ફિટનેસ જાળવવા માટે પોતે જ સમય કાઢવો પડશે અને એ તમે જો ફિટનેસ જાળવશો તો એ લાઈફ ટાઈમ તમારું શરીર તમારો જ સાથ આપશે। એટલે ખાસ કરીને તમારું ફિટનેસ જાળવવા માટે તમારે તમારો સમય કાઢવો પડશે અને કસરત સાથે જોડાયેલું જ રહેવું પડશે। તો દર્શક મિત્રો, આવી જ રીતે નવા નવા કાર્યક્રમ અને દેશ દુનિયાના સમાચાર જોવા માટે આપ જોડાયેલા રહો નેશન પ્લસ ન્યૂઝની સાથે। નમસ્કાર। સમાચારોનો સતત અપડેટ મેળવવા માટે અમારી નેશન પ્લસ ન્યૂઝની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો અને ફોલો કરો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર।